बट कई बार आप गलती कर देते हो ऐसे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करके जो कि आपका ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कंपेयर टू आपको प्रॉफिट गेन करवाने। आपके विजन और मिशन वो बड़े खूबसूरत लगेंगे अगर आपके पास बैंक में पैसा हो आपके करंट अकाउंट में। हाँ, मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया जिनके आर्टिकल्स कम्प्लीटली एआई के थ्रू लिखे गए हैं एंड दीज साइट्स आर रैंकिंग। B2C प्रोडक्ट बेचने के लिए आप कंज्यूमर को बेचना है तो आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो करके वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबली यू नीड टू लुक आउट योर स्ट्रैटेजी। So this is the first time ever I am doing such format. I was looking forward to this, and along with me, I brought somebody I very recently met. And see, digital has power, right? Online social media has power, and I met him. I recently made this plan. I posted there, and he showed up. So I have with me Alok Jha. Hi, Alok. हेलो बिलाल। So just before he starts speaking, just before we start with the questions, I'll tell you quickly about Alok. Alok has been a business development manager for years, I think more than 5 years, यस right? And he have been also working closely with sales teams and bigger organizations earlier. But very recently, 3 months ago, he have started something of his own. So interesting concept he have started. And Alok, you want to speak about it? What is it about? sure. So thank you so much Bilal, first of all, to inviting me. Yes. And I would say it's luck or probably destiny for us to meet, that we have met so randomly if you will, right? Basically हम लोग एक ग्रुप का पार्ट है एंड वहाँ से बिलाल ने पोस्ट किया था अबाउट एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन रिकॉर्डिंग अ पॉडकास्ट. सो आई सेड ओके, द आइडिया इज़ अपीलिंग, लेट्स मीट. एंड फिर वहाँ से हाउ थिंग गोज, लेट टेक इट फॉरवर्ड. So to give you a background or add to what Bilal has said, for past 5 years, I have been across different sales role in across sectors: education, hotel, technology, F&B. And there is one core problem that I've realized every business or startup, if you will, they go through, is that they don't get enough sales to sustain their operations for longer period of time. And as you know, Bilal, like 90% of the business fail in the first 5 years. Right. There are many reasons. The primary is, there is no market for the product what you are selling. बट बिकॉज एक स्टार्टअप ओनर अपने आइडिया में इतना मशरूफ़ रहता है, जो वो इतना सोचता नहीं करके ना हमारा आइडिया है लोग क्यों नहीं खरीदेंगे, वो उस मोड में आ जाता है. बट सिंस आई हैव वर्कड विद 3 स्टार्टअप in their early journey, and what I have realized is that just doing that phone calls, having keeping in touch with your consumer or prospects if you will, वो आपको एक बड़ा अच्छा आइडिया दे देता है करके हाउ योर स्टार्टअप शुड बी, वॉट यू आर थिंकिंग योर स्टार्टअप इज ए, योर आइडिया इज दिस. बट एक कंज्यूमर या एक कस्टमर आपसे क्या चाहता है, Right. आई सॉल्व फॉर दैट, वन ऑफ द यूज केसेस. सेकेंड इज दैट स्मॉल बिजनेस कंपनी जिनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है, जो उतना एड रन करते नहीं है, बिकॉज यू योर सेल्फ आर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड अ गुड वन एट दैट, बिकॉज यू आर डूइंग क्लोज टू अ डेकेड, you have been to this profile. So people like you or digital marketing agency, when the small business start working with them, वो lead generate तो कर रहे हैं but lead nurture नहीं कर पा रहे हैं, Right. Right. and they do not have that proper systems how to go about it. So there our company solves for it. Okay. And your company's name is My company name is Sale Client Business Solution Client. LLP. It's a LLP firm. Okay. Earlier I was thinking to go for private limited, but I have earlier I was part of private limited company, but the compliance and everything is too much to bear. I think it's the beginning of the startup, so you can Right. probably Right. coming few days. Okay. Also I have the clarity करके फंडिंग नहीं लेना है. फंडिंग लेते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड लगता है, तो मैं बोला चलो LLP पे विल स्केल इट टू अ सर्टेन लेवल, एंड आफ्टर दैट इफ एट ऑल तो हम But I'll come to this funding part in a bit. I'll ask see, of course, sales digital में lead generate करना तो it's not that challenging. Like you create a appealing piece of content, a appealing piece of ad, and you put it across your target audience, and you will start generating leads, right?
But what exactly you do after that sales, how you warm those leads? Do you want to talk more about it, just to, you know? Surely. So as Bilal said, since he's a performance marketer and has worked with quite a big organization, some of them are public listed companies. So earlier, before behind the shoot, we were having a word. When small businesses, there are many companies that are solving for lead generation. एज अ स्मॉल बिजनेस जब आप मार्केटिंग एजेंसीज को अप्रोच करते हैं वो बोलेंगे हम आपका ऐड कर देंगे वगैरह वगैरह एंड सम आर गुड एट इट राइट दे डू अ फैंटास्टिक जॉब बट समटाइम्स द बिजनेस ओनर व्हाट दे डोंट गेट इज दैट बॉस लीड जनरेट करना ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है यू हैव टू एंगेज विद दैट आप फॉलो अप करने चाहिए आप प्रॉपर उसको नर्चरिंग करना चाहिए देयर वुड बी शुड बी अ पर्सन हु इज़ लुकिंग आफ्टर दोज लीड्स जो आपको प्रॉपर रिव्यू दे रहा है एवरी वीक ओके ये कैंपेन से हमने ये लीड जनरेट हुए we are following with them and we have shared all the marketing collaterals and everything with the prospect and it's a journey. Correct. So आपने भी कभी when you have worked across like पूरा sales cycle में तो performance marketer digital marketer are all solving for that lead generation part unless you are a product business जहाँ पे you are basically sending the traffic to a landing page जहाँ पे they can make the purchase then it is fine but for most of the service business or wherein high ticket sales is involved so it require a lot of back and forth. Correct. For one of the corporate trainers that we are working वहाँ पे भी same हो रहा है that ma'am has a good LinkedIn presence and everything but to sell the corporate training and everything it does require follow up with the big companies. Correct. एंड आई थिंक सेल्स के अंदर जो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि कितने एक्सपीरियंस्ड हो आप और कितने अच्छे से आप अपने कस्टमर को समझते हो. राइट. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि किसको क्वालिफाई नहीं करना सेल करने के लिए. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप बिकॉज यू आर अ स्टार्टअप एंड यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड तो आपको सेल करने का एक भूख होता है राइट. तो यू वॉन्ट टू सेल एंड यू वॉन्ट टू क्लोज एज अर्ली एज पॉसिबल राइट. बट कई बार आप गलती कर देते हो ऐसे क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करके जो कि आपका ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कंपेयर टू आपको प्रॉफिट गेन करवाने में और कंपेयर टू कि लॉन्ग टर्म में आपकी कंपनी के लिए वो कितना बेनिफिट्स होता है राइट. इनसे. तो एक एक्सपीरियंस सेल्स प्रोफेशनल इस चीज़ को बहुत स्टार्टिंग में ही आइडेंटिफाई कर लेता है राइट. और वो बहुत सारे क्लाइंट्स को डिस्क्वालीफाई कर देता है कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स राइट. तो आई थिंक यू ऑफर बिकॉज आई हर्ड फ्रॉम समबडी दैट आपका टैगलाइन है कि यू प्रोवाइड योर सेल्स टीम योर एक्सपीरियंस सेल्स टीम एट द कॉस्ट ऑफ इंटर्न्स. Yes. In new companies you will hire a new sales team. You generally go with interns. Right. ठीक है, just to begin with, just to see how things are going on. But then interns, the type of work that they can deliver because they are limited with their knowledge and with their years of experience, right? So you provide the same service at a very, very minimal cost, but at the same time you provide the experience that you have. Do you want to talk कि वो experience प्रोफेशनल्स को आप ऑनबोर्ड करते हो उसकी क्या प्रोसेस होती है और किस तरीके से वो अलग अलग कंपनीज की चीज़ों को एट द सेम टाइम टैकल कर पाते हैं? राइट. श्योर. आपने बिल्कुल सही कहा बिलाल दैट हम इंटर्न्स के कॉस्ट पे विल गिव यू अ वेरी एक्सपीरियंस सेल्स प्रोफेशनल. मोस्ट ऑफ द टाइम अभी हमने जो फेस कर रहे हैं राइट स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे आर रनिंग दैट बिजनेस फ्रॉम अ डेकेड और टू दे नो व्हाट आर द साइकिल्स ऑफ द बिजनेस राइट. बट दे आर नॉट इन द प्लेस करके वो एक फुल एक्सपीरियंस सेल्स बंदा डेडिकेटेड रख सके केवल सेल्स के लिए ईयर अराउंड ऑन पेरोल. देयर वी कम इन एंड द यूएसपी ऑफ आवर सर्विसेज एंड मेनी इट्स नॉट अ यूनिक आइडिया आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया दैट वी हैव कम अप विथ. बहुत सारे एजेंसीज है एंड देर आर गुड एजेंसी एज वेल. वी ऑल्सो बिलीव दैट वी आर अ पार्ट ऑफ दोज ग्रुप अ गुड एजेंसी who can help you with your sales. तो जितने भी हम हायर कर रहे हैं ना हम 3 सेक्टर्स से मेनली करते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग इस बात पे दी गई है हाउ यू इंटरेक्ट विद द कस्टमर. सो आई प्रिफर टू हायर फ्रॉम पीपल हु हैव हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, ओके, कॉल सेंटर बैकग्राउंड एंड पीपल हु हैव वर्कड इन रिटेल सेक्टर. ओके. बिकॉज ये तीनों फ्रंट फेसिंग रोल है
और ये उतना पेबल नहीं होते इनके. आप अगर स्टैटिस्टिक्स निकालोगे पर रेवेन्यू एम्प्लॉय इज probably the lowest in India what they are paid, but the work that they do and the hours that they put in, also they thoroughly, or I would say they truly understand the meaning of teamwork, Right. right? Because one of the individuals that we hired was from hospitality, right? So they are good at covering for their teammate if they are going somewhere or there is some festival. Recently Ganesh Utsav tha, so for them they are covering for her. So it's good, we see okay सामने से बंदे एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, राइट? अब केवल मैं एक कंपनी में आ रहा हूँ, नो जस्ट पेरोल पैसा लेके आई एम नॉट गोइंग बैक, आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू माई टीम. Correct. ऑल्सो आई डोंट सेल देम विजन. और जो भी क्लाइंट मैं ऑनबोर्ड करता हूँ मैं उनको भी बहुत बड़ी ड्रीमी ख्वाब नहीं दिखाता Correct. दैट मैं Being आपके very realistic. हाँ मैं आपके कंपनी में आऊँगा और बहुत सारा सेल कर दूंगा आपके लिए. डजंट वर्क लाइक दैट. Yes, we are going to come in your company, be your plug and play partner in seasonal time where you require to make sales. और a issue that we are facing is that अभी हमारे स्मॉल बिजनेसेस, राइट? तो बिलाल आप मुझे यहाँ पे बताना योर टेक. जो लीड जनरेशन पार्ट है तो प्रॉबेबली अभी वो ऐसे थिंकिंग में करते हैं जहाँ पे they know there is potential in digital marketing and running ads, Right. but when they go to hire, what they are doing is that ये फेसबुक तो ऐड है ना, ऐड तो हम भी रन कर लेंगे, वो बूस्ट ऑप्शन आता है उससे मैं दबाऊंगा, ऐड रन हो जाएगा और ना आलोक आपकी टीम ना फॉलो अप कर लेगी उस पर. अब मैं उनको मुझे काफ़ी समझाना पड़ता है करके आप जो बूस्ट ऐड करोगे कितना टारगेटिंग वगैरह कैसे बहुत मायने रखता है. अगर लीड सोर्स ही बेकार है और मतलब अच्छी नहीं है तो सेल्स भी नहीं होगी, नो मैटर व्हाट मैं कितना उस पर एफर्ट डालूँ. Correct. तो ये वाला आप अगर मुझे आप बताना चाहे हाउ कैन आई गो अबाउट इट और व्हाट शुड दिस स्मॉल So बिजनेस basically ओनर. your question is कि जनरली लोगों के दिमाग में ये है कि सिर्फ एक फेसबुक के बूस्ट करने से आपको लीड्स आना शुरू हो जाएंगे, राइट. राइट? बट देन द क्वालिटी ऑफ लीड्स ऑफ कोर्स बहुत डिफ़र करती है. तो मैं आपको अपनी ही बात बताता हूँ. शुरुआत में जब मैंने करियर शुरू करा तो जो मेरे सीनियर हुआ करते थे उस टाइम, तो उन वो लीड जनरेट करते थे 1600 रुपये, 1600, क्लोज टू 1600 रुपीज़ पर लीड. पर लीड. एंड जब मैंने देखा कि 1600 रुपये और शुरुआत करियर कर रहा था तो मुझे लगा कि काफ़ी हाई है. एंड फिर मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार मुझे अपॉर्चुनिटी मिली उसके 2-3 महीने बाद, तो मैंने खुद रन करने की कैंपेन कोशिश करी. मुझे ये समझ में, मैंने जब कैंपेन रन करा तो लीड का कॉस्ट 1600 रुपये से 15 रुपये और 20 रुपये हो गया, राइट? तो मैं तो रातों रात खुश हो गया. मैंने कहा यार ये तो काफ़ी अच्छा, मतलब मैं तो बहुत कम ले आया लीड का कॉस्ट. बाद में ये समझ में आया कि वो 1600 रुपये की जो लीड थी 10 में से 5 क्लाइंट क्लोज हो रहे थे और यहाँ मेरी 100-200 लीड भी किसी काम की नहीं है, राइट. राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप कितने हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो शुरू में, राइट. राइट? आप सबको ओपन कर दोगे कि आप सिर्फ मुझे मैसेज करो या आप सिर्फ मुझे कॉल करो या सिर्फ मुझे अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस या नाम दे दो और हम आपके पास आएंगे, तो आपको बहुत जंक मिलेगा, राइट? रिसेंटली जब से फेसबुक के अपडेट्स आए हैं जिसमें वो iOS 16 का अपडेट आया प्राइवेसी का, फेसबुक का प्रॉपरली रीटारगेट भी नहीं कर पाता है लोगों को, राइट? उसको पता ही नहीं है कि कोई वेबसाइट पे गया तो उसने फॉर्म भरा भी है कि नहीं भरा है, राइट? जब तक आप कन्वर्जन API वगैरह सेटअप नहीं करते हो एड्स मैनेजर में. द प्रॉब्लम इज़ के क्वालिटी ऑफ लीड्स बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई है ओवर द पास्ट 2 to 3 years. आप कितने हर्डल्स क्रिएट कर रहे हो शुरू में ताकि आपके पास जो एंड में लीड आ रही है, राइट, उसकी क्वालिटी आप इंक्रीज़ कर पा रहे हो. तो कैसे करोगे आप? ऑफ कोर्स यू आर आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस, राइट? यू आर नॉट कीपिंग द क्वेश्चंस एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट? यू आर ऑल्सो WhatsApp API के थ्रू you are sending them a WhatsApp message automatically and there you are asking questions, right? You are automatic आजकल वॉइस कॉलिंग्स वाली APIs अवेलेबल हैं जिस पर आप कॉल करवाओ and you will ask that if you are interested then press 1. So you will get automatically the filter out leads and then you will supply it to the sales team, right? Generally इससे lead की quality nurture हो जाती है and there फिर expertise like yours are very important because if I am getting such high cost leads then I need to make sure that right people are taking care of those leads, right? Because then if I give those leads which are like 2,400 or 3,000 rupees, but if I give it to an intern, probably they will ruin the lead.
So there I need somebody who understand that this lead is coming through multiple processes and they are qualified, and now we need to understand कि what exactly they are looking for, how we are building that credibility and trust, and how they are finally closing that lead. Right? Different industries, आप जितनी industries ले लो, घुमा फिरा के quality of lead increase करना, it's very important in digital nowadays. Right? और मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से वो इम्पेरेटिव हो जाएगा करके आप लीड जनरेट करो, राइट? क्योंकि अभी हम देखते हैं, जैसे प्रोबेबली आप भी इस पे एग्री करोगे, जो क्लाइंट्स हमें अप्रोच करते हैं और बोलते हैं सर ये तो मेरे पास 5 लाख लोगों का डेटा पड़ा है, आप उस पर कॉलिंग करो ना, आपको मैं 10,000 फ़ोन नंबर्स देता हूँ. Cold leads, yes. तो व्हाट यू वांट टू इलैबोरेट, वैसे बिजनेसेस फ्यूचर क्या है उनका? देखिए व्हाट्सएप, आप उन कोल्ड डेटा पे कैसे रीच आउट करोगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? इधर तो आप उनको एक मेल कैंपेन शूट करोगे जिसमें से ज़्यादातर स्पैम में चले जाएंगे, राइट? वो उन तक पहुँचेगा ही नहीं मेल. व्हाट्सएप अनऑफिशियल वे से करोगे तो व्हाट्सएप आपके नंबर्स ब्लॉक करेगा, आप कितने नए नंबर लोगे, राइट? तो जो अलाउड और ऑफिशियल मीडियम्स हैं, लाइक ईमेल के जितने भी टूल हैं अभी, जैसे मेल चिम्प है, जोहो कैंपेन है, राइट, सेंड इन ब्लू है, इसमें एक ऑप्ट इन का रिमार्क होता है कि इफ़ दिस लीड और इफ़ दिस पर्टिकुलर ईमेल हैव अलाउड यू टू सेंड द ईमेल, अदरवाइज दे ऑल्सो गिव्स अनसब्सक्राइब का नीचे इन द राइट व्हेन एवर दे आर शूटिंग एन ईमेल, राइट? सेकेंड इज व्हाट्सएप में भी दे गिव यू एन ऑप्शन फॉर ऑप्ट इन, राइट? अदरवाइज ऑप्ट इन नहीं है तो आप उस पर उनको आप भेज दोगे, एक बार दूसरी बार नहीं जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑफिशियल मीडियम्स ने ही, जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसके ओनर्स हैं, उन्होंने इतने हर्डल्स क्रिएट करके रखे हैं कि आप कोल्ड डेटा को बैठ के एक एक कॉल करोगे तो आप 10 कॉल करोगे, आपका नंबर स्पैम में जाना शुरू हो जाएगा ट्रू कॉलर में ऑटोमेटिकली. ट्रू कॉलर और जो भी आपका ब्लॉक करने वाला ऐप है वो उसको ब्लॉक कर देगा, राइट? तो कोल्ड डेटा पे रीच आउट करना इट्स इनइफेक्टिव अगर आप उसको लॉन्ग रन में देखोगे तो, राइट? इट्स बेटर टू जनरेट लीड्स, राइट? इट्स बेटर टू जनरेट लीड्स एंड देन वार्म अप दोज लीड्स एंड मेक इट योर क्लाइंट्स. आई थिंक वो लॉन्गर रन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है. हो सकता है कोल्ड डेटा आपको थोड़ा सा इफेक्ट दे दे, बट इन द लॉन्गर रन इट्स नॉट दैट इफेक्टिव. अच्छा, ऑल्सो व्हेन यू टारगेट दोज प्रोस्पेक्ट जो आपके फिल्टर के अकॉर्डिंग है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू नो गो टू रन एड्स, तो प्रोबेबली उसमें भी बेनिफिट करता होगा स्मॉल बिजनेसेस के लिए. जैसे मैंने लेट्स से आई एम टारगेटिंग, आई एम नॉट श्योर वेदर अभी FB में वो होता है कि नहीं, यू वुड एक्सप्लेन, इज दैट हम किसी की एनिवर्सरी आने वाले हम टारगेट कर सकते हैं, एज वाइज टारगेट कर सकते हैं, डेमोग्राफिक. हाँ, तो वो रहने वाला है, those things are there still because those are legacy targetings, right? Facebook is not going to remove that because अगर उसने हटा भी दिया तो अचानक से लोग एकदम परेशान हो जाएंगे कि ये जो चीज़ पे मैं रिलाई करता था वो चली गई तो क्या होगा, राइट? क्वेश्चन इज कि अब वो इफेक्टिव कितनी है, राइट? पहले जब आप सिलेक्ट करते थे, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास एक चिल्ड्रन ब्रांड है, राइट? यंग किड्स का कपड़े सेल करते हो ऑनलाइन, तो पहले जब आप वो एक बिहेवियर टारगेट करते थे कि पेरेंट्स ऑफ 6 to 12 या 12 to 18 या जो भी आप टारगेटिंग होते थे, तो वो इफेक्टिव थी. उससे एक्चुअल में आपके पास जो लोग आपके एड्स देखते थे वो वही ग्रुप के थे, बट अभी आप सिलेक्ट करते हो तो वो लोग नहीं हैं. तो थिंग इज कि वो ऑप्शंस तो रहे हैं बट अभी उसकी क्वालिटी बहुत डिक्रीज हो गई है. एंड इसका एक रीज़न, इसका एक प्लस साइड भी है विच इज़ आपकी प्राइवेसी ज़्यादा मेंटेन हो रही है, राइट? मोबाइल फोन्स एंड एवरीथिंग इज नाउ बीइंग सो सिक्योर कि इतने आसानी से दीज प्लेटफॉर्म्स आर नॉट एबल टू ट्रैक यू. तो इट्स अ गुड थिंग फ्रॉम प्राइवेसी पॉइंट ऑफ व्यू, बट फॉर डिजिटल मार्केटर्स द प्रोसेसेस टू गेट टू देम इज नाउ लिटिल बिट मोर यू नो स्टेप बढ़ गया है. ओके, नाइस. तो प्रॉबेबली इसलिए मैं अभी मैं फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम टॉकिंग टू मार्केटिंग एजेंसीज, तो वहाँ पे हम लोग उनको पिच करते हैं, राइट? यू बिकम अ फुल सर्विसिंग फर्म, राइट? जहाँ पे यू नॉट ओनली डू लीड जनरेशन फॉर योर क्लाइंट्स, you start servicing them as well. Okay. And you don't have to set up a extra infrastructure just for that. You don't have to manage the payroll. Correct. You don't have to manage the employee. Plug and play. For example, a client has come and you have good rapport with the client. आप उससे बात कीजिए एंड उसको चाहिए हाँ आप ही फॉलो अप करो, आप यू आर डूइंग अ गुड फैंटास्टिक जॉब एट लीड जनरेशन, आप भी सर्विसिंग करो, वी डोंट माइंड दैट. तो प्रोबेबली जो मेरा पेरोल है पूरा ईयरली जिसको मैं पे करता हूँ, वी डोंट नीड दैट.
and since you are doing for a quite some time, we are doing for quite some time, so you have expertise as well, right? You have proper system, reporting system in place. तो आपका वो पूरा राइट फ्रॉम लीड जनरेशन से लेके लीड सर्विसिंग टू क्लोजिंग पूरा कवर हो जाता है. तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मुझे आपकी फीडबैक भी चाहिए थी बिकॉज यू आर अ परफॉर्मेंस मार्केटर. तो मुझे चाहिए था करके हाउ दिस आइडिया साउंड्स टू यू, because this is the I am talking to marketing agencies, pitching to them. So basically you are saying कि वो जो पूरी process है उसको digital करना है rather than going on Google Sheets or Excel sheets. Right, not digital per se. For example, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया, आपने लीड जनरेट की. इन अर्लियर अवतार्स आपको टीम बैठानी पड़ेगी, राइट? पूरा जब भी आप कैंपेन करोगे तभी टीम बैठानी पड़ेगी. मगर ऐसा तो नहीं होगा करके जब भी आप कैंपेन चालू करते हैं अपना तो एक बंदा आ जाता है, वो प्रोबेबली ईयर अराउंड आपके कंपनी में रहेगा. जब सीजन नहीं है, सीजनल बिजनेस है आपका, तो वो बंदा पेरोल पे क्या कर रहा है आपके लिए, अनलेस आप उससे दूसरा काम नहीं ले रहे हैं. एक पॉडकास्ट मैंने देखा था जो रोगन का, उसमें नवल रविकांत करके, दिस गाय, स्मार्ट गाय, उसने यही बोला था ना कि धीरे धीरे थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स गिग, गिग इकोनॉमी की तरफ जा रहा है. एंड इट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि businesses are now realizing that having an employee throughout the year, if it's not in need, then why to have those things? Right. पहले एक वो होता था कि नहीं, your data would be confidential and then you would have those people, you will train them and you will make them your assets, right? But now you will see people are not like that. Employees are now switching jobs every year, every second year, every third year. Probably your father, our father's generations, जिन्होंने 10-10 साल, 15-15 साल एक ही कंपनी में निकाले हैं, राइट? अब वो वाली जनरेशन अब हमारी जनरेशन नहीं है. तो इसी कंडीशन में कंपनीज के पास वो पॉइंट तो इनवैलिड ही हो जाता है कि अभी वो जो हम उसको अपना एसेट बना रहे हैं. तो उस कंडीशन में तो फिर आउटसोर्सिंग इज़ द वे टू गो, राइट? हैविंग दोज पीपल जो रिमोटली आपके लिए कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को सॉल्व करके दे रहे हैं, राइट? दिस इज गोना बी द नेक्स्ट बिग थिंग, राइट? मोर एंड मोर कंपनीज आर गोना आउटसोर्स इंडिविजुअल core tasks of any organization, for sales, say, for marketing, for finance, and they are going to outsource it through to add up to your point. जब बिलाल भाई आप कह रहे हो करके इट्स गुड फॉर कंपनी, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा इट्स गुड फॉर एम्प्लॉय एज वेल. द रीजन इज दे कैन ट्रूली फोकस अपॉन व्हाट दे वांट टू अचीव. करेक्ट, राइट? उनको ऐसा नहीं होगा करके हम किसी एक कंपनी के साथ बंद के रह गए. इफ़ यू आर अ अचीवर, सो प्रोबेबली यू कैन डू योर जॉब एज गुड एज वेदर यू आर ऑन कंपनीज प्रीमाइस एंड ऑल. ऑल्दो देर इज वन thing that haunts company, even to us, because we are a sales agency after all. The data protection, because we recently, we had heard about few companies that they have, given this sales project to individual, and what they have done, they have taken the data, downloaded on their PC, and the data was stolen. दे हैव कॉपीड द डेटा. तो हम जब किसी एम्प्लॉय को किसी क्लाइंट का डेटा दे रहे हैं तो हम तो देते नहीं है, पहली बात. वेरी लिमिटेड एक्सेस, आपको पूरा प्रॉपर हमारा सिस्टम पे ही काम करना है, राइट? बिकॉज कंपनीज हैव फेस करके द मोमेंट आप बोलोगे करके वी आर गोइंग टू डू सेल्स फॉर यू. सो फॉर एग्जाम्पल हमारा एक रियल एस्टेट क्लाइंट है, तो उनको हमने कहा सर हम टेलीकॉलिंग वगैरह कर देंगे आपके लिए. तो उन्होंने बोला आलोक मैं ट्रस्ट नहीं करता, हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व फॉर डेटा. तो हमने उनको काफ़ी रीजंस दिया एंड वी आर इन एडवांस स्टेज ऑफ क्लोजिंग देम. ही इज प्रीटी मच कन्विंस. देखिए मेरा इसमें ना एक सिंपल सा पॉइंट यही है कि ऐसे कंपनीज और ऐसे लोग मार्केट में हमेशा रहेंगे, राइट? जो क्रेडिबिलिटी अपनी तो ख़राब करेंगे और साथ ही साथ उस पूरी नीश की ख़राब करेंगे, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे इंडिविजुअल और ऐसे फ्रीलांसर्स और ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट ही करना ख़त्म कर जाएंगी. फिर ये आपकी ब्रांड को उल्टा एक अपॉर्चुनिटी देता है स्टैंड आउट करने का, राइट? कि देखो आपका ब्रांड है, ऑब्वियसली आपके ग्लास डोर्स होंगे, ग्लास डोर के ऊपर पेजेस होंगे, आपके फेसबुक पे पेजेस होंगे. अभी तो उतने बड़े नहीं हुए हैं जो पेजेस पे फोकस करें. गूगल रिव्यू होंगे, हर जगह आपके रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स रहेंगे. आप अगर अपना क्लाइंट अपवर्क या फाइवर जैसी साइट से उठाते हो, वहाँ पर भी आपके रिव्यू सेक्शन रहेगा.
आपके कस्टमर्स आपके टेस्टिमोनियल तो दिखेंगे, राइट? राइट और अगर आपका टेस्टिमोनियल और आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में अच्छी है तो आपको काम मिलेगा, राइट? अब जैसे कोविड के ड्यूरेशन में आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग फ्रीलांसिंग एंड कंपनीज वर सेइंग कि फ्रीलांसर्स से कुछ भी काम करवाओ, एक तो वो कर नहीं पाते, दूसरा उनकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी हाई होती हैं, राइट एंड तीसरा वो मतलब कमिटमेंट्स भी उनके प्रॉपर नहीं होते, राइट राइट? कमिटमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट दे आर गोना डिलीवर, कमिटमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ मच टाइम दे आर गोना टेक, राइट? इन सब चीज़ों को मिला के फ्रीलांसर्स के ऊपर से भरोसा उठ गया था. फ्रीलांसर्स, इफ़ यू से लेट्स से डिज़ाइनर्स, लेट्स से पीपल हु हैव एक्सपर्टीज इन कोडिंग, यू नो, छोटी छोटी वेबसाइट्स या ऐप वगैरह बनाना. बट moreover, what I've seen this industry, this gig thing being mature enough, now people are going towards people जो जिनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, राइट? और जिन वो हर जगह से उनको वेरीफाई कर पा रहे हैं, राइट? क्योंकि वो लोग अपनी पर्सनल ब्रांड्स एस्टैब्लिश करके रख रहे हैं, इंस्टाग्राम पेजेस बना रहे हैं. कोई भी फिशी दिखता है तो जनरली लोग अब उनके पास जा ही नहीं रहे हैं. तो ऐसा कंपनी कोई भी अगर करती है जो डेटा प्राइवेसी को ख़त्म करती है या मेंटेन नहीं कर पाती, तो वो लॉन्ग टर्म में वैसे भी नहीं टिकने वाली मार्केट में, राइट तो अगर आपके पास ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो यू कैन ऑलवेज शो योर टेस्टिमोनियल्स, यू कैन ऑलवेज मेक देम स्पीक टू योर बिगर क्लाइंट्स, राइट? वी डू दैट. क्लाइंट से तो हम जनरली बात नहीं करवाते बिकॉज समवेयर वो एथोस के अगेंस्ट चला जाता है करके, अनलेस एंड अनटिल बट टेस्टिमोनियल्स, टेस्टिमोनियल. यस, जो क्लाइंट हमें खुद ऑर्गेनिकली आके वी ऑलवेज रिक्वेस्ट करके प्लीज़ आप रिव्यू दीजिए हमें, राइट? तो यस. तो मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक और टच करना चाहता हूँ बिकॉज एआई आजकल बहुत राइट चल रहा है. मैं चाह रहा था आप उस पर बात करें. देखो, मैंने एआई को बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत क्लोजली टेस्ट करा है अभी, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे चैट स्पॉट के साथ काम कर रहे हैं जो कि लीड नर्चरिंग की प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं. राइट तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज एंड जब से जीपीटी और दूसरे copy.ai इस तरीके के टूल्स आए हैं, तो सोशल मीडिया कॉपीज, आर्टिकल्स. अब एसईओ में भी जब आप आर्टिकल लिखते हो तो लोग बोलते हैं एआई के थ्रू आप लिखोगे तो वो रैंक नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में. बट मैं एज अ टेस्टिमोनियल बोलता हूँ एआई का ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ काम किया जिनके आर्टिकल्स कम्प्लीटली एआई के थ्रू लिखे गए हैं, एंड दीज साइट्स आर रैंकिंग, ओके राइट? इनका सर्च इंजन पे विजिबिलिटी भी आया है, राइट? तरीका होता है कि कैसे आपको निकलवाना है. आप सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, इट्स समथिंग दैट यू नीड टू लर्न. राइट एवरीबडी शुड लर्न हाउ टू गिव प्रॉम्प्ट टू चैट जीपीटी. आप सिर्फ 2 लाइन लिखोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको ऐसा ब्रिलियंट कुछ वर्क मिले जो आपके लिए एक्चुअल में आपकी मार्केटिंग और सेल्स और एसईओ में हेल्प करेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला. यू नीड टू गिव कि आप किस टोनैलिटी में बोलना चाहते हो, आप क्या लेंथ रखना चाहते हो, क्या क्या रेफरेंसेस हैं आपके, क्या क्या इंस्पिरेशंस हैं. ये कुछ अगर आप फॉर्मेट्स यूज़ करते हैं तो एआई डेफिनेटली ऐसा कंटेंट जनरेट आपको करके देता है. एंड देन ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो, राइट? वंस यू टेक कंटेंट फ्रॉम देयर, लेट्स से आप अपनी कॉल्स के लिए एक स्क्रिप्ट बना रहे हो. राइट अब आपने एआई को चैट जीपीटी को बोल दिया कि भाई ये चीज़ें मुझे स्क्रिप्ट में चाहिए, उसने आपको एक कंटेंट्स की स्क्रिप्ट लिख के दे दी. अब आप उसमें अपने भी तो इनपुट्स डालोगे, राइट ऑफ कोर्स. आप सिर्फ कंप्लीटली ब्लाइंडली उसको तो फॉलो करोगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू देन गेट इन्वॉल्व्ड एंड गिव द राइट प्रॉम्प्ट्स टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दीज प्लेटफॉर्म. जैसा आप एआई के बारे में बोल रहे थे, राइट? तो जनरली अभी हम 3 मोड ऑफ सेलिंग करते हैं, 3 मोड में. एक थ्रू व्हाट्सएप हो गया जहाँ पे हम ऑटोमेटेड चैटबॉट बना के देते हैं कंपनीज के लिए. सेकेंड, हम आपका ईमेल मार्केटिंग के थ्रू अप्रोच करते हैं. एंड थर्ड इज cold calling, if you will, not cold calling also, calling on the leads that the client has run ads on. तो अभी हमें एक क्लाइंट मिला था रिसेंटली, तो ही हैज़ शोन मी अ डेमो फॉर अ एआई कॉलिंग सिस्टम जहाँ पे एआई आपसे बात कर रहा है. एंड वाकई में मैं जब मिला था, बिकॉज वो एक अब्रॉड के क्लाइंट थे, तो इंग्लिश में जो उनका टोनैलिटी था एआई का बात करने का, एंड आई वॉज एक्चुअली स्पीकिंग टू एआई, तो मुझे वाकई में ऐसा लगा करके जो लीड नर्चरिंग पार्ट है वो क्या पूरा एआई में शिफ्ट होने वाला है. बिल्कुल, बट आई सी दैट. या तो मुझे वो काफ़ी एक लगा, मगर फिर उसके बाद मैंने कॉम्प्रीहेंड किया और मैं 2-4 लोगों से पूछा, बट वो भी अगर होगा भी तो इट्स टाइम थोड़ा मतलब हम कह सकते हैं 3 से 5 साल.
है हमारे पास. But there would be, I am sure there would be some sort of regulation. Also, at the time of decision making, you people, because we are human, right? हम social animals हैं, तो हमें चाहिए करके एक human touch हो वहाँ पे. I agree, but at the same time, people are now getting more used to these technologies than ever before, right? So I don't at all, I see के ऐसा नहीं होगा. I see that happening every day in front of me. Every organization is taking up. Recently, I think Bonville नहीं. There is this brand Dark Fantasy. Sunface Dark Fantasy. उसका एक ad आया अच्छा, जिसके आप अंदर, वहाँ राइट Right? हाँ. तो उसने किस तरीके से डाली वाला जो इंजन है जिसके Right. ऊपर वो इमेज डिफ्यूजन होता है. Basically, you can make a ad with Shahrukh Khan Yes. on that, right? उनका वो concept है. वो right? कॉन्सेप्ट है. तो ऐसे चीज़ें ब्रांड्स क्रिएटिवली यूज़ करते रहेंगे एवरी नाउ एंड देन. एंड आई थिंक बहुत हद तक कस्टमर सपोर्ट, लीड नर्चरिंग, प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स के भी बहुत सारी. पोस्ट सेल्स की तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स अब तो सारे Would be- ऑटोमेटेड हो गए हैं, would right? be Mostly, automated हाँ. and are getting automated, right? It's just that कि कौन सी कंपनी पहले कैचअप कर रही है, कौन सी Right. बाद में कैचअप करेगी. तो मैं वही वेव को राइड कर रहा हूँ, राइट? Right. हम ईमेल सीक्वेंसिंग जो बना रहे हैं, तो हम क्लाइंट को कभी भी वो हमें बोलता है करके ईमेल मार्केटिंग तो वर्क नहीं करेगा लोग. मैं बोला देखिए सब चीज़ वर्क करता है. द क्वेश्चन इज हाउ यू आर यूजिंग द चैनल, राइट? अब एक B2C प्रोडक्ट बेचने के लिए आप कंज्यूमर को बेचना है, तो आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो और मुझे बोल रहे हो करके वर्क नहीं कर रहा है, तो प्रोबेबली यू नीड टू लुक आउट योर स्ट्रैटेजी, गेट अ परफॉर्मेंस मार्केटर, राइट? एंड देन प्रोबेबली यू विल गेट सम रिजल्ट, Correct. राइट? यस. But I think काफ़ी अच्छा डिस्कशन. And this, guys, this is the first time ऐसा लगा नहीं, बाय द वे दिस इज द फर्स्ट. we are ever recording, and thank you so much. I think do you want to add anything as a closing note? Anything you want to say? So I would just say that because I'm a startup, I'll promote my thing. So, I won't folks, mind it. if you are looking to hire professionals at probably intern के cost पे, we can help you in that. Also, being part of that we are running this organization, we have realized that it's as important to lead nurturing, मगर उससे पहले आता है lead generation, जहाँ पे बिलाल is having a lot of experience, right? तो probably यही मेरे get down to it, do more sales because sales is the backbone. आपके विजन और मिशन वो बड़े खूबसूरत लगेंगे अगर आपके पास बैंक में पैसा हो आपके करंट अकाउंट में. तो मैं आपको बोलूँगा उस पर फोकस करो. इट साउंड्स वेरी सेल्सी, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑल द बिजनेस गोल्स आर दैट. But you do sales, right? Yeah. It should sound sales. But also you need to solve a problem. Correct. Most of the time, it will not work that your product is probably not solving a problem. Correct. And you are thinking करके आलोक ने बोला है करके सेल्स करना है तो सेल्स हो जाएगा, ऐसा नहीं. या मैं आलोक की कंपनी को मैं आउटसोर्स कर दूंगा वो मेरा सेल्स देख लेगा, ऐसा नहीं है. योर प्रोडक्ट नीड्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और उसके बाद सेल्स वुड हैपन, राइट? Absolutely. आप स्टार्टिंग में ही नहीं कर Absolutely. Having realistic expectations are very important, right? But I think Alok, we have discussed a lot of things. Thank you so much for first of all coming today. Thank you so much for inviting me, Such Bilal. short invitation. Probably अभी मैं random there is a word serendipity. I have witnessed it because I कल ही don't हम even पहली know. बार बात कर रहे हैं I और don't आज हम even मिल रहे हैं पॉडकास्ट पे बैठे हुए हैं. But I Thank don't you so even much. know that word, guys. But anyways, thank you so much. And I will keep recording more such videos. I will keep having more such people. Bye.